Hello everyone, I am Rakhi and today in this video I am going to bring you with a new topic which is known as qualitative analysis. So in this lecture I will make you learn about the qualitative analysis. It's chapter number 12, class 11. Friends, you all know the first step in the first step which is there in the structure determination, the first step involved in the structure determination or characterization of the organic compound is first of all we need to purify that organic compound. Fine. So after the purification of that organic compound for the characterization and for the detailed study of that organic compound, we need to analyze the various elements that has been present in that organic compound. So this is the general analysis which we need to do it. So the first step in the structure determination and characterization of an organic compound after it has been obtained in the pure form is to carry out its qualitative analysis, that is to detect the various elements present in it. So वही है कि जो first step है in structure determination और उसकी characterization में organic compound की after it has been obtained to us in a pure form, मतलब pure form में जब हमें organic compound मिल गया है तो अब pure form के बाद जो first step है for the structure determination and for the structure characterization is how many elements are present in that particular organic compound. We need to analyze the presence of various elements present in that compound. ठीक है? So the elements which commonly occur in organic compound, जो एलिमेंट्स जो कॉमनली अकर करते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो तो कार्बन है. कार्बन तो हमेशा ही रहेगा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में. ठीक है. So the elements which commonly occur in organic compounds are carbon, which is always present, hydrogen, present in most of the compounds, oxygen and nitrogen. So carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen, these four compounds are basically present most of the times in the organic compound. ठीक है. So few other elements such as sulfur, phosphorus, halogens and metals are also occasionally present. लेकिन जो basically हमें generally मिलते हैं वो है carbon, obviously it is always present. Then hydrogen in most of the cases. ठीक है. Then oxygen and nitrogen. बाकी जो other elements हैं वो sulfur है, phosphorus है, halogens हैं, and these are the metals which are occasionally present in the organic compound. ठीक है. So first of all जो हम डिटेक्शन करेंगे, डिटेक्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन की, we will by qualitative analysis हम ये जानेंगे कि किस तरह से हम डिटेक्ट करें कार्बन और हाइड्रोजन को इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है. तो डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रिंसिपल बिहाइंड द डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. The presence of carbon and hydrogen in any organic compound is detected by heating the given compound with dry copper 2 oxide or cupric oxide in a hard glass टेस्ट ट्यूब. ठीक है. तो सबसे पहले जो डिटेक्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन में हम क्या करेंगे, हमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला है उसको हम हीट अप करेंगे किसके साथ में, ड्राई कॉपर 2 ऑक्साइड या फिर कह दो क्यूप्रिक ऑक्साइड को, वो भी हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब के अंदर. ठीक है. सो प्रिंसिपल इज द प्रेजेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिटेक्टेड. जो प्रेजेंस है कार्बन और हाइड्रोजन की एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो कैसे डिटेक्ट होगी, बाय हीटिंग द पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड. उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम हीट करेंगे ड्राई कॉपर 2 ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड को, वो भी किसमें, एक हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब के अंदर. तब हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, जो कार्बन प्रेजेंट होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, और हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट होगा तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा वाटर के अंदर. सो अगर कार्बन एंड हाइड्रोजन किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है तो हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करेंगे, वो भी किसके साथ में, कॉपर 2 ऑक्साइड के साथ में या क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ में. अगर ये दोनों कंपाउंड एलिमेंट्स कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है उस गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाएगा वाटर में. सी दिस इज द रिएक्शन रिगार्डिंग द theory which I have told you for the detection of carbon and hydrogen. तो आप देख सकते हैं कार्बन को अगर मैं रिएक्ट कर रही हूँ कॉपर 2 ऑक्साइड के साथ में या क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ में, आई हैव हीटेड इन अ हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब, तो मुझे मिला कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 Cu, दैट मीन्स कॉपर. फिर अगर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है
वो उसने कॉपर ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट किया, हीट किया उसको, तो वो मिला मुझे ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन जो है वाटर H2O, और साथ में मिला मुझे कॉपर Cu। ठीक है, अब हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल चुका है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि उस जब हमने हीट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, और जब हमने हीट किया तो वाटर रिलीज हुआ। सी फॉर टेस्टिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर, फॉर कार्बन डाइऑक्साइड के तो लाइव वाटर टेस्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करने के लिए एज यू नो, अभी शायद आपने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन हाँ इन 10th क्लास यू मस्ट हैव स्टार्टेड कि जब हमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हमें डिटेक्ट करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का पता लगाना है, सो वी नीड टू डू दैट लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है? वी विल रिएक्ट द कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी अगर मैंने कंपाउंड को हीट किया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है, तो आई एड लाइम वाटर टू दैट रिजल्ट। अगर मैं लाइम वाटर उस रिजल्टेड कंपाउंड में, रिजल्टेड प्रोडक्ट में ऐड करती हूँ, तो वो लाइम वाटर विल टर्न इनटू मिल्की स्टेट, दैट मीन्स टर्बिडिटी आ जाएगी उसमें, व्हाइट कलर का हो जाएगा, मिल्की फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए दिस इज द लाइम वाटर टेस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट किया लाइम वाटर के साथ, लाइम वाटर को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड reacted with calcium hydroxide, carbon dioxide reacted with calcium hydroxide means lime water, तो मुझे क्या मिला? CaCO3 plus H2O। इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही मिल्कीनेस आती है, तो हम कहते हैं लाइम वाटर टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्टेड विद लाइम वाटर इट विल गिव अस मिल्कीनेस और टर्बिडिटी। दैट टर्बिडिटी इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो वी गॉट द कैल्शियम कार्बोनेट, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिला, तभी ये जो साइन मैंने आपको लगाया, द एरो यू आर सीइंग डाउनवर्ड एरो, ये डाउनवर्ड एरो यही शो कर रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ है, इसका प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, इट हैज बीन सेटल डाउन, एंड व्हाट वी गॉट इज अदर प्रोडक्ट इज वाटर। ठीक है, अगर हमें वाटर को टेस्ट करना है कि हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन की प्रेजेंस है या नहीं है, तो मैंने उस कंपाउंड को जो मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको रिएक्ट करवाया कॉपर टू ऑक्साइड के साथ में, मुझे मिला वाटर। अब वाटर प्रेजेंट है या नहीं है उसकी डिटेक्शन कैसे करेंगे? आई मेक रिएक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल, जो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है आफ्टर हीटिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड विद कॉपर टू ऑक्साइड, मैं उस वाटर मॉलिक्यूल को हीट अप करूंगी कॉपर सल्फेट के साथ में, और वो भी व्हाइट कलर में, दैट मीन्स एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। आई विल ट्रीट द रिजल्टेड प्रोडक्ट of organic compound when heated with copper to oxide with anhydrous copper sulfate to know the detection of presence of water। ठीक है, वाटर की प्रेजेंस के लिए मैं वाटर, जो मेरा रिजल्टेड प्रोडक्ट मुझे मिला है उसमें उसको मैं रिएक्ट करवाऊंगी एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के साथ में। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, तो जैसे ही एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट अगर वाटर प्रेजेंट होगा उसके अंदर, जैसे ही व्हाइट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट रिएक्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में, तो वो व्हाइट कलर टर्न हो जाएगा ब्लू कलर के अंदर। जैसे ही कॉपर सल्फेट जो व्हाइट है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ब्लू कलर में चेंज अप हो गया है, इट मीन्स देयर इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और अगर हमें पता है कि वाटर है इन द रिजल्ट अगर वाटर है, तो ऑब्वियसली ये सीधा सीधा डायरेक्ट कंफर्मेशन देता है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन एलिमेंट भी प्रेजेंट है। ठीक है, आई होप द रिएक्शंस रिगार्डिंग द डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन might have been clear to you. There are few more points to discuss regarding the detection of carbon and hydrogen, which I will be discussing in my next video. But still, if you are having any doubt relating to this qualitative analysis, the in basics of this qualitative analysis, then do write your doubts in the space given below. Well, that's it for me now. It's me, Rakhi, signing off for now.